Good morning and warm welcome to you all. I am Vaibhav, your host for today. Our topic for today is understanding MSMEs, registration and its benefits. It shall be taken by Ms. Nirmala Soni. She shall cover government incentives and subsidies for MSMEs, GEM portal registration and its benefit, MSME IPO listing and requirements, followed by question and answer session. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Ms. Nirmala Soni, question and answer session, and last closing session. About Sadgun Sangh. Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with the mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Designation and organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualification are Doctorate in Business Management, followed by Mechanical Engineer. His experience are Rajasthan Atomic Power Project, India's first nuclear power plant, RAPP at Rawat Bhata, Kota, built by Indian engineers, worked as nuclear scientist for 11 years and successfully completed and commissioned the plant. Engineers India Limited, first batch of engineers to develop Bombay High offshore oil and gas fields, mega offshore complex platform, trunk and submarine pipelines, underwater inspection and indigenization oil and gas equipment, etc. Det Norsec Versatiles, world largest classification society, worked for 17 years at various capacity for the certification of fixed offshore installations, submarine pipelines, onshore projects, and personnel qualification. Underwater inspection divers. ICS. He is founder of India's first certification conformance assessment body established in the year 1999, provider of total quality solutions, certification of management system, ISO, inspection, testing, and training qualification of personnel. Achievements and awards. Received Lifetime Achievement Award for the contribution for the corrosion technologies from NACE International by NIGIS under NACE USA. Social worker, protection of life, asset, environmental, and safety. Now I request Dr. Katara to please virtually inaugurate the session. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of our today's keynote speaker, Ms. Nirmala Soni. Her designation organization, CA, Registered Valuer, SFA, and Social Auditor. Her academic qualification, FCA, Registered Valuer with IBBI, Social Auditor, and Chartered Accountant. Her area of specialization and experience are mentor with Startup India Portal, Satna Incubation Center, Jabalpur, Incubation Center and Spark, Sagar Startup Park, MP Startup Center. Visiting faculty with RVO, Career Counselor with ICAI. Her awards and achievements are Top 50 Remarkable Woman Award 2023, presented by Diva Plant Magazine. The Real Superwoman Award 2023, presented by Forever Star India.
certificate of appreciation received from RVO IBBI, India Book of Records received from Collector of Satna. So please welcome Nirmala ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Weber, for this introduction. Thank Thank you. you, ICS, for giving me this platform. Kindly make me co-host so that I can share my screen. Yes, ma'am. You are already co-host. Okay, thank you. So you all can see my screen? Yes, ma'am. Just make it to full screen, ma'am. Okay. Yeah. So our today's topic is understanding MSME registration and its benefits. So myself, Nirmala Soni, this is my mail ID and my contact details. So आज का जो हमारा फ्लो होगा प्रेजेंटेशन का, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई क्या है, एमएसएमई का मतलब, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है एमएसएमई का, जेम पोर्टल उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, ट्रेंड्स पोर्टल का क्या बेनिफिट्स हो सकता है एमएसएमई के लिए, एमएसएमई समाधान, वेरियस सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स ऑफ एसएमई, फंड रेजिंग कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं एमएसएमई से, और एसएमई से लिस्टिंग के लिए कैसे जा सकते हैं, और उसके लिए लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब हम डिटेल में आज जानेंगे वन बाय वन। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सीए के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज है अगर वो एमएसएमई सेक्टर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो गया, फैक्ट्री लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आईएसओ रजिस्ट्रेशन, जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ये सब रजिस्ट्रेशन करके वो काफी अच्छा मतलब अपना जो लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क है ऑडिट एंड टैक्सेशन को और एक्स्ट्रा कर सकते हैं और अपने आप को काफी अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए बेनिफिट्स हो सकता है इसके लिए, दोनों को मतलब एमएसएमई को भी काफी बेनिफिट्स होगा और सीए को भी काफी बेनिफिट्स होगा उसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएसएमई का मतलब क्या है? Ma'am, sorry to interrupt you, ma'am. Ma'am, just make it to full screen presentation. Just make Okay. it full screen, ma'am. नाउ Yeah. इट्स ओके? Okay, ma'am. Perfect. Thank you, Yeah. ma'am. सो एमएसएमई का मतलब क्या है? जैसे ये लोगो है एमएसएमई का, वैसे ये है एम स्टैंड फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, एम स्टैंड फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, ई स्टैंड फॉर द एंटरप्राइजेस। और ये जैसा इसमें लोगो में लिखा है अवर स्ट्रेंथ हमारी शक्ति, तो एमएसएमई को अगर बूस्ट करते हैं तो इंडिया का मतलब इंडिया को काफी अच्छा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर्स को बूस्ट करने में कंट्री का डेवलपमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एमएसएमई सेक्टर्स को। तो हम लोग एमएसएमई को ये माइक्रो स्मॉल मीडियम में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो पहले ये था कि सबके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स एंड टर्नओवर के डेफिनेशंस थे, पर ये पुराने थे। तो अभी जो रिवाइज डेफिनेशन है कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को, वो अगर इन्वेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी है 1 करोड़ है या अप टू 1 करोड़ है तो वो माइक्रो, और अगर 1 करोड़ से 10 लाख 10 करोड़ के बीच में है तो वो स्मॉल है, और 10 से 50 के बीच में है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। और सेम टर्नओवर अगर 5 करोड़ के अंदर है तो वो माइक्रो है, अगर 50 करोड़ से अंदर है तो स्मॉल है, और 250 करोड़ से अंदर है तो मीडियम है। ये है अभी ये हुआ है, यही डेफिनेशन। पहले मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग डेफिनेशन से मतलब कैटेगरिया था कि कैसे डिफाइन करना है, पर अब 2020 में जब ये रिवाइज हुआ तो इसमें सेम कैटेगरिया किया मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री के लिए। सो जैसा आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जैसा हम देख रहे हैं कि मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस
मतलब होल ट्रेडिंग कवर नहीं है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये सब कवर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री, एक प्लांट अगर किसी सेक्टर में लगता है, किसी एरिया में लगता है, तो काफी डेवलपमेंट हो जाता है उस सेक्टर का। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डेवलप हो जाता है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, वाटर कनेक्शंस काफी अच्छे हो जाते हैं, या वहाँ के जो लेबर होती है उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये इसमें ज्यादा सब्सिडीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स को देती है। और जैसे आप रेशियोज देख रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़ है और टर्नओवर 5, तो 1:5 का मतलब 5 टाइम्स टर्नओवर। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है तो टर्नओवर 50। तो ये इजी रिमेम्बरेंस के लिए भी इजी है कि अगर आपको मतलब आपको अगर जानना चाहता है कि हमारा स्मॉल में है, मीडियम में है, तो ये आपको काफी इजीली याद करने के लिए भी इजी हो। सो अगर ये टर्नओवर में एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है या नहीं है, अगर हम 250 करोड़ मीडियम के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट कंसिडर है कि नहीं है। तो ये है, एक्सपोर्ट उसमें कंसिडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, और वो फिर भी वो जो इंडस्ट्री है वो बेनिफिट ले एमएसएमई के इंसेंटिव्स का। तो इसलिए अगर हमारा 1000 करोड़ भी हो रहा है मतलब बिजनेस, और 250 करोड़ से अंदर जो डोमेस्टिक का है, तो हम एमएसएमई का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कंट्री डेवलप होती है, एक्सपोर्ट हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, तो इसके कारण गवर्नमेंट भी इसलिए एक्सपोर्ट टर्नओवर को इससे एक्सक्लूड कर रही है। फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे ये इन्वेस्टमेंट्स? सो क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? अगर ये इफ एन एंटरप्राइजेस क्रॉसेस द सीलिंग लिमिट, सो अगर इन्वेस्टमेंट्स, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ का है, पर उसका टर्नओवर ज्यादा है, सम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, 6-7 करोड़ से है, तो क्या हम उसको फिर भी माइक्रो में कंसिडर करेंगे या हम स्मॉल में कंसिडर करेंगे? तो उसका आंसर है, अगर किसी भी एक इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर उसका फुलफिल नेक्स्ट के लिए होता है, तो हम उसको नेक्स्ट में करेंगे, लोअर में नहीं करेंगे, हायर कैटेगरी में करेंगे। तो जैसे अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर ही है, पर टर्नओवर हमारा 7 करोड़ 10 करोड़ है, तो हम हायर कैटेगरी स्मॉल में जाएंगे, ना कि माइक्रो में जाएंगे। सो लोअर कैटेगरी इज नॉट अलाउड, हायर कैटेगरी इज अलाउड, हमेशा हायर कैटेगरी देखा जाएगा। और दोनों में से एक क्राइटेरिया भी अगर आपका फुलफिल होता है तो आपको उसको देखना जरूरी है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स तो आपका 1 करोड़ के अंदर है, पर आपका टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, 10 करोड़ हो रहा है, तो हायर कैटेगरी में आप आएंगे, माइक्रो में नहीं रहेंगे, आप स्मॉल के बेनिफिट्स लेंगे। और टर्नओवर के लिए आपकी जीएसटी, जो भी जीएसटी नंबर है, जीएसटी अगेंस्ट जितने भी टर्नओवर है कलेक्टिवली, जैसे अगर कुछ ब्रांचेस है, कुछ अदर ऑफिसेस है, अदर बिजनेसेस आपके, तो अगर एक ही जीएसटी नंबर है तो वो उसका पूरा टोटल टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा, ना कि अलग अलग। ये सेम चीजें मैंने जो अभी बताई आपको, नो एंटरप्राइज शैल बी प्लेस्ड इन द लोअर कैटेगरी अनलेस इट गोज बिलो द सीलिंग लिमिट। सो इफ एन एंटरप्राइज हैव द इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ बट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, तो वो स्मॉल में कंसिडर होगा, ना कि माइक्रो में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कुछ कर रहे प्रोडक्ट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज पे रिलेटेड है, तो ये विच इज डिफाइंड अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। सो सेम डेफिनेशन है। और जब हम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन सेम एज इनकम टैक्स एक्ट, बट इसमें एक थोड़ा अलग डेफिनेशन, मतलब क्राइटेरिया है। जब हम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, सो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है, टोटल हमारा सब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है 60 lakhs, पर उसमें बैलेंस शीट में जो दिख रहा है 60 lakhs का, पर प्लांट एंड मशीनरी उसमें सिर्फ 40 lakhs है, तो वो 40 lakhs ही कंसिडर होगा, 60 lakhs नहीं। तो 20 lakhs का जो बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको कंसिडर किया जाएगा। और जो ये एक्सक्लूडिंग
डेप्रिसिएशन जो नेट अमाउंट होगा बैलेंस शीट में, उसके बेसिस पे आपको कंसीडर होगा कि आपका माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइजेस है। सो कुछ कैटेगरीज कुछ एक्टिविटीज है जो एक्सक्लूडिंग है डेफिनेशन में एमएसएमई में। जैसे अगर कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ आइटम आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, लॉजिंग, तो ये सब, फिशिंग, एक्वाकल्चर, जैसे फिशरी का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ये सब चीजें एमएसएमई में कवर्ड है। एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप, एनिमल प्रोडक्शन, हंटिंग, और जैसा मैंने बताया होलसेल एंड रिटेल ट्रेड कवर्ड नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है उस सेक्टर का, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर दिया है गवर्नमेंट ने। क्योंकि सब मतलब गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि आप एक जॉब करने वाले ना बनो, जॉब देने वाले बनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स दो। तो इसलिए इसलिए एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिया है हर किसी भी कैटेगरी को। आगे हम और भी चीजें बेनिफिट्स जानेंगे कि कैसे कैसे बेनिफिट्स देना चाहते हैं, सो दैट कि एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, एक पूरे सिटी का डेवलपमेंट हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है एमएसएमई एज ऑन डेट, कितनी एमएसएमई से रजिस्टर्ड है और किस कैटेगरीज में रजिस्टर्ड है। जैसे टोटल नंबर ऑफ एसएमई है 6.5 करोड़। सो और उद्यम प्लेटफॉर्म पे जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, उसमें 4.737 करोड़ एसएमई रजिस्टर्ड है। उसमें से माइक्रो 4.29 है, स्मॉल 7 करोड़ लैक्स है, मीडियम 0.67 लैक्स है। तो एसएमई सेगमेंट अकेला 30% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है। और ये काफी, और एक्सपोर्ट्स पे भी 45% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड। सो ये और काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट, 15 करोड़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे हैं। और उसके साथ साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स भी हो रही है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स भी हो रही है। जैसे अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो वर्कर्स लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जो एक्चुअली में फैक्ट्री में वर्क करने वाले हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर मशीनरी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होना है फैक्ट्री टू वेयर हाउस और एनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो वर्कर है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ओवरऑल सबको, मतलब डायरेक्ट तो एम्प्लॉयमेंट 15 करोड़ है, ओवरऑल भी एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट कर रहा है एमएसएमई सेक्टर। और अकेले 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, collectively contributing 40% of all registered MSMEs. So ये 3 states में सबसे ज्यादा एसएमई एंटरप्राइजेस है। और रिसेंटली श्री जतिन राम मांझी को एमएसएमई का कैबिनेट मिनिस्टर, जो नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्ट्री है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर इनको रखा है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। और मेन जो गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया। सो हम इंपोर्ट ना करके ज्यादा से ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर इन इंडिया करें। जो मोबाइल्स, लैपटॉप्स और ये बाकी जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो इससे ज्यादा हम मेक इन इंडिया मतलब अपने इंडिया में प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। ऐसे काफी प्रोडक्ट्स है जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, पर आज हम इस मतलब इस पोजीशन पे आगे कि उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस बेनिफिट इंपोर्ट करते हैं तो हमारा वो, वैसे ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहे थे, अब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उससे भी ज्यादा मतलब बेनिफिट ले रहे हैं। फिर G20 जो समिट हुआ था, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आए थे इंडिया, उनके लिए काफी ये जो भी हमारे जो एमएसएमई सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स हैं, वो ही है गिफ्ट हैम्पर करके दिया था, सो दैट कि इट प्रोमोट एमएसएमई सेक्टर्स आल्सो। लाइक अगर कुछ कोई अच्छा कॉफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कॉफी का वो दिया कुछ। अगर ट्रेडिशनल साड़ी है या खादी वर्क है, उसको गिफ्ट किया गया। तो ये सब डेवलपमेंट दिखाने के लिए कि हमारे जो डेवलपमेंट हो रही है, वो उसको दिखाने के लिए पूरी जो
जो गिफ्टिंग पैकेजिंग थी वो सब ये एमएसएमई सेक्टर से ही लिया गया था। जो जो स्टेट्स में जो अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जो डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, उसी प्रोडक्ट को हम एज ए गिफ्ट रिप्रेजेंट किए सब फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। और मोदी जी का एक मिशन है विकसित भारत। सो 100 ईयर्स जो हमारे हो जाएंगे, तो हम 1947 से 2047 ये 100 ईयर्स में मतलब ये तो गवर्नमेंट हमको मतलब डेवलपिंग कंट्री ना बोल के डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा मैन पावर है, और वो इस मैन पावर को सबसे अच्छा यूटिलाइज करेंगे और अच्छे डेवलपमेंट करेंगे, तो हमारे इंडिया वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्री which having largest ecosystem, so that this MSME can work or startups can work, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेन इंडियंस के पास है, तो सब अच्छा इस अपॉर्चुनिटीज को यूज करें। बट एमएसएमई सेक्टर्स को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कंपटीशन फ्रॉम लार्ज बिजनेस। सो अगर किसी कोई लार्ज बिजनेस है जिसका मतलब टर्नओवर 250 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उनके काफी क्योंकि बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मोस्टली उनको ही मिल जाते हैं। अगर कभी टेंडर वेंडर होता है, गवर्नमेंट के टेंडर आते हैं, समझो 1000 करोड़ का टेंडर है, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंशियल लार्ज बिजनेसेस को दिया जाता है, क्योंकि लार्ज बिजनेस है तो उनका वर्किंग कैपिटल भी अच्छा मतलब अच्छा होगा, उनके पास मैन पावर भी अच्छी होगी, स्किल्ड मैन पावर होगी, तो सब चीजें फर्स्ट उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता है एमएसएमई को। लैक ऑफ इनफ फाइनेंस इन द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं हो एमएसएमई के पास, तो बैंक्स भी जल्दी फाइनेंस नहीं देती है उनको, तो ये भी एक चैलेंज है उनके पास। फिर टाइमली रिकवरी ऑफ ड्यूज, अगर कस्टमर्स को हमने पैसे दे दिए, मतलब प्रोडक्ट हमारा सप्लाई कर दिया, पर टाइमली अगर पेमेंट्स नहीं आए, तो हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक काफी चैलेंज है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हमने ले आए, प्लांट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर वो प्लांट एंड मशीनरी चलाने के लिए जो लेबर चाहिए वो स्किल्ड नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ट्रेन करे उनको, प्रॉपर गाइडेंस दे, तो फिर वो प्लांट एंड मशीनरी और वो उसको मतलब प्लांट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो स्किल्ड लेबर के लिए भी काफी चैलेंजेस होते हैं, अगर क्योंकि अगर रिमोट एरिया में हम कोई प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ पे लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, तो फिर लेबर को कहीं और से मतलब दूसरे स्टेट से बुलाना, उसके रहने की मतलब पूरा रहने के लिए भी फिर हमको ये अरेंजमेंट्स करना पड़ता है, क्वार्टर्स बनाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो एसएमई सेक्टर्स को काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। बट इन सब के बावजूद भी अगर एसएमई सेक्टर्स को थोड़ा सा भी हम बूस्ट करें और बेनिफिट्स दे, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे, तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो पूरे ओवरऑल कंट्री का जो बेनिफिट है, जीडीपी है, एवरीथिंग है, वो डिपेंड अपॉन एमएसएमई सेक्टर से। सो एमएसएमई के लिए कैसे हम रजिस्टर करें एमएसएमई, हमारी जो अगर प्लांट है हमारा, तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ पे इस पे कोई मतलब गवर्नमेंट फीस नहीं है, सिर्फ जो कंसल्टेंट जो आपके रजिस्ट्रेशन करेगा वो अपनी फीस चार्ज करेगा, बाकी और कोई फीस नहीं है इसमें। और इसको एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, नो नीड टू रिन्यूअल, कोई बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जैसे कि एक बार आ गया कि 5 साल के लिए वैलिड है, फिर बाद में 5 साल बाद फिर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपका आ गया आपको कभी इसको रिन्यू नहीं करना है। और ये आपको एक नंबर दिया जाएगा इसमें, जैसे आधार, मेरा आधार मेरी पहचान, वैसे ही अगर हमारा बिजनेस का अगर आधार कार्ड बोले तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो इसमें मतलब बिजनेस का आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक नंबर दिया जाएगा आपके बिजनेस का, वो यूनिक नंबर होगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा, उसमें सब चीजें पता होगी कि आपका बिजनेस क्या है, किस एरिया में है, सब डिटेल्स उसमें होंगी। और ये इसमें सब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, सिर्फ ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के इसमें होता है वर्क।
मतलब आपने बता दिया कि मेरा एड्रेस ये है वो है, मतलब तो उसमें और मेरा आधार नंबर ये है। जैसे अगर प्रोप्राइटर बिजनेस है तो प्रोप्राइटर जो है उसका आधार नंबर चाहिए होगा। जैसे अगर निर्मला सोनी कोई प्लान डाल रही है तो निर्मला सोनी का आधार नंबर चाहिए होगा। मगर अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों पार्टनर्स के डिटेल्स होंगे। अगर मेरा एचयूएफ है तो जो मैं एचयूएफ का करता है उसके डिटेल्स चाहिए होंगे, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पैन कार्ड। पर ये टोटल प्रोसेस है वो पेपरलेस है और फ्री ऑफ चार्ज है। सो इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं करना है हमको। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे हमको, जैसे हम अब कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका नाम क्या है, हमने क्या सोचा है पहले वो, नेम ऑफ द एंटिटी। जैसे अब निर्मला सोनी मेरा नाम है पर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ विनायक इंडस्ट्रीज। तो विनायक इंडस्ट्रीज ये मेरे फर्म का नाम हो गया, तो नेम ऑफ द फर्म इज विनायक इंडस्ट्रीज। पैन नंबर ऑफ द एंटिटी, तो मेरा पैन नंबर आ गया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर रही हूँ तो कब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर मैं कंपनी हूँ तो मेरा कंपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब का है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब का है, किस एरिया में वर्क कर रही हूँ, एक्टिविटी कौन सी मेरी, मैं मतलब क्या मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, कोई ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या मोबाइल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या लैपटॉप के कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या कुछ और चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ। जैसे साड़ी हो गया, कुछ मतलब बल्क में कुछ अच्छा, मतलब कुछ और आइटम मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या कोई फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। मोबाइल नंबर ऑफ पर्संस, ईमेल आईडी, मेरा जीएसटी नंबर, फिर आधार नंबर हो गया, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या किस एड्रेस पे मैं रजिस्टर कर रही हूँ। अगर रजिस्टर ऑफिस अलग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है तो दोनों की डिटेल्स चाहिए होगी। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं मेरे पास, उनकी पूरी डिटेल्स होगी, चाहिए होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या एड्रेस आ रहा है वो भी। अगर मेरा जो प्लान मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या रजिस्टर ऑफिस मेरा रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट मेरा है कि नहीं। और फिर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, पूरे डिटेल्स। और ये जैसे ही हम ये सबमिट करेंगे, ये विद इन मतलब 2-3 आवर्स का प्रोसेस में आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आ जाता है। और ज्यादा मैक्सिमम टाइम लेंगे तो 1 डे में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको सर्टिफिकेट जैसे आज सुबह मैंने अपलोड किया तो मतलब 4-5 बजे तक मुझे सर्टिफिकेट आ जाएगा। या ज्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम, वेबसाइट नहीं चल रही है कुछ ना, तो कल मुझे सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। जैसे इसमें दिख रहा है, ये एमएसएमई का लोगो हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये हो गया मेरा उद्यम नंबर। सिंस ये एमपी का है तो उद्यम एमपी, और ये मेरे बिजनेस का नंबर हो गया। ठीक है। और मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, मैंने किस ईयर से स्टार्ट किया, 2023, 24 से। और ये मेरी जो बिजनेस स्टार्ट किया वो किस कैटेगरी में आ रहा है, माइक्रो में। और क्लासिफिकेशन डेट, मतलब जिस दिन मैंने ये अपलोड किया उस दिन का डेट। फिर मैं मेरे बिजनेस का यूनिट का नाम क्या है, जो मेरी कंपनी है उसका नाम क्या है, वो कहाँ रजिस्टर्ड है। फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेरी कंपनी का कब का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और जो मैं प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ उसका पूरा ये एनआईसी डिजिट नंबर्स, उसमें वो कैटेगरी जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन आ रहा है, आता है कि आप किस मैन्युफैक्चरिंग, कौन से प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर कुछ आइटम्स है जैसे ई सर्विस का है तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स आ जाएगी। तो ये हमारा उद्यम आधार, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरा उद्यम मतलब मेरा बिजनेस में, मेरे बिजनेस का आधार। जैसे मेरा आधार, मेरी पहचान इंडिविजुअल के लिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन बिजनेस के लिए। सो हम एक बार अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे हम जेम पोर्टल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जेम पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर ट्रेंड्स पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमएसएमई समाधान में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर वेरियस स्टेट्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स की भी स्कीम्स होती है, सब्सिडीज होती है, और सेंट्रल की भी, गवर्नमेंट की भी कुछ सब्सिडीज होती है, तो वो हमको मिल सकती है। जैसे मैं एमपी स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो एमपी स्टेट्स में अलग पॉलिसीज है, महाराष्ट्र स्टेट में अलग पॉलिसीज है।
तो कुछ वो बेनिफिट्स मुझे अगर मैं यहाँ पे कोई प्लांट आ रहा है एमपी में तो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर अगर कोई बैंक लोन्स देना चाहता है तो काफी अच्छे रेट्स पे लोन्स मिल जाता है। जैसे नॉर्मली सीसी लिमिट है 8.5 to 9% में सीसी लिमिट मिल जाती है। तो और उसको प्रायोरिटी भी मिलता है, अगर कोई एसएमई है तो उसको प्रायोरिटी भी दिया जाता है और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। या फिर ये कोलेटरल फ्री क्रेडिट गारंटी स्कीम में भी है, कोलेटरल फ्री लोन्स मिलता है बैंक से अप टू 5 करोड़। अगर किसी के पास कोलेटरल रखने के लिए मतलब कुछ है नहीं, कोई जमीन नहीं है, कुछ बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब कोई अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो चीजें भी यहाँ पे होती है अगर एमएसएमई में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अगर कोई हमने मशीनरी लेना है तो उसके लिए भी फाइनेंस कराना है, अगर प्लांट एंड मशीनरी हमको परचेस करनी है उसके लिए भी हमको फाइनेंस कराना है किसी बैंक से या किसी से मतलब कोई अलग इंस्टीट्यूशन से, तो वो भी हम करा सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इनकम टैक्स में भी अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था 43BH कि अगर कोई पेमेंट्स नहीं दे रहा है आपके टाइम पे तो उसका वो उसमें भी उसको लायबिलिटी हो जाएगी, उसको डिसअलाउ हो जाएगी एक्सपेंसेस। सो टाइमली पेमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में है। तो काफी बेनिफिट्स है, मतलब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, फुल फ्री है, मतलब सेल्फ सर्टिफिकेशन पे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रिक्वायर्ड है। पर यही है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया एक बार तो आपको बेनिफिट्स काफी है। और ये हम सब बेनिफिट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं जेम पोर्टल से। तो जेम पोर्टल में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जेम पोर्टल होता क्या है? तो जेम पोर्टल GEM तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। वहां पे मतलब सेलर जो भी मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई यूनिट्स है वो एज ए सेलर वहां पे रजिस्टर हो सकते हैं। और गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की कितनी भी मिनिस्ट्रीज है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये सब वहां पे रजिस्टर होंगी एज ए बायर कि अगर कोई भी उनको कुछ परचेस करना है तो वो वहां से परचेस करेंगे। और भी काफी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जैसे सेल, भेल और गेल, ये सब जो पीसीयूस है वो लोग भी वहां से ही परचेस करेंगे। तो जेम पोर्टल लॉन्च हुआ था 2016 में, पर एक्चुअल जो उसका मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को बेनिफिट्स लेना शुरू किया उन्होंने वो 2020 में लेना शुरू किया। क्योंकि पहले उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जेम पोर्टल के बारे में, जैसे मगर रजिस्ट्रेशंस और ये सब बेनिफिट्स 2020 से हम ज्यादा ग्रोथ देख पा रहे हैं जेम पोर्टल में। तो सेलर कौन हो सकता है जेम पोर्टल में? एनी OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसे भी मतलब वेदर वो माइक्रो लेवल पे कर रहा है, स्मॉल लेवल पे कर रहा है या मीडियम लेवल पे कर रहा है, वो रजिस्टर कर सकता है एज ए सेलर। या उसका कोई ऑथराइज चैनल पार्टनर वो भी रजिस्टर कर, ऑथराइज डीलर वो भी रजिस्टर कर सकता है। जैसे लैपटॉप है HP का, लेनोवो का, पर कुछ वो तो असेंबल्ड है, जो छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो कोई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है। तो वो अगर वो जैसे बाइक है, टाटा मोटर्स अगर कोई कार बना रही है तो वो उसको कार बनाने के लिए छोटे छोटे नट्स वो सब है, तो वो कोई और बिजनेस मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनसे जो परचेस करना है तो वो वहां से करेंगे। तो ये सब सेलर्स जेम पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे मेन बात, जैसा मैंने बताया MSME में मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस भी कवर्ड है। तो क्या CA फर्म भी रजिस्टर कर सकते हैं जेम पोर्टल में? सो इसका आंसर है यस। सीए, क्योंकि सीए को काफी रिस्ट्रिक्शंस है कि अपने आप फ्री मतलब पब्लिसिटी ज्यादा नहीं कर सकते, आप किसी का कस्टमर्स का ये नहीं कर सकते अपने पर क्या वो रजिस्टर कर सकते हैं? तो जेम पोर्टल में MSME में भी रजिस्टर कर सकते हैं, जेम पोर्टल में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आंसर यस है। और ये ICA जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, उनका एक अनाउंसमेंट है डेटेड मार्च, उन्होंने मार्च 4 को ये अनाउंसमेंट की है
सर्कुलर निकाला है कि वो कर सकते हैं। सो issued a circular with regard to chartered accountant in practice and firm. So जो प्रैक्टिस में है फर्म, इंडिविजुअल प्रैक्टिस या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल फॉर रेंडरिंग देयर प्रोफेशनल सर्विसेज। सो अगर किसी को अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है, जैसे गवर्नमेंट्स के काफी ऑडिट्स के काम निकलते हैं, जैसे गवर्नमेंट को स्टॉक ऑडिट करवाना है, कॉन्करेंट ऑडिट कराना है, तो वो वहाँ पे टेंडर इशू जेम पोर्टल में वह दिखेगा कि ये टेंडर है। तो अगर किसी फर्म को उन पे मतलब वर्क करना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको वो सर्विसेज के लिए वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे दे सकते हैं उस मिनिस्ट्री में। Who can be the buyer on the GeM portal? So buyer can be central or state ministries like Ministry of Railway, Defense, Corporate Affairs, ये सब जितनी भी ministries है वो सब यहाँ पे purchasing कर सकती है। Public sector enterprises, public sector banks, public sector finance companies, public sector insurance companies, local bodies like a BMC, PMC, extra in Maharashtra. So basically जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड पीओसीयूज है, सब कुछ है, जैसे गेल, बेल, इंडियन ऑयल, ये से जो पीओसीयूज है, अगर उनको भी कुछ परचेस करना है तो जेम पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर, गवर्नमेंट ने ये उनको मिनिस्ट्रीज को ये सबको एक इंस्ट्रक्शंस दिए है कि आपका जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे अगर 1000 करोड़ का उनको कोई ऑर्डर करना है तो 10% आप एमएसएमई से ही करोगे। सो सपोज 1000 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका 10% हो गया 100 करोड़। तो अगर 100 करोड़ का किसी एमएसएमई को एक ऑर्डर मिलता है तो काफी अच्छा बेनिफिट है उसके लिए। अगर कोई मतलब स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस उसको 100 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है तो उसके लिए मतलब उसके ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है, मतलब उस स्टेट के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट से इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया कि 10% आपको एमएसएमई से, क्योंकि उनको चैलेंजेस फेस करते थे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से, जो लार्ज कॉर्पोरेट वो है, जैसे टाटा मोटर्स को अगर कोई ऑर्डर मिलता है तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स कैन फुलफिल, पर ऐसे कोई दूसरी कंपनी से जो छोटी कंपनी है उनको जल्दी ऑर्डर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो बिड करेंगे, क्या पता उनको मिले ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया कि 10% आपको एमएसएमई से ही लेना है। सो दोनों वर्क कर सकते हैं, लार्ज प्लेयर्स भी वर्क कर सकते हैं, स्मॉल प्लेयर्स भी वर्क कर सकते हैं और वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक मैं अपना मतलब एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो हमारे क्लाइंट्स है। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे काफी स्टेशनरी के आइटम्स के उनकी डिमांड थी, तो हमारे जो क्लाइंट है वो स्टेशनरी में डील करते हैं, तो वो वहाँ पे टेंडर पे जेम पोर्टल में रजिस्टर करके उनको काफी वो गवर्नमेंट ऑर्डर भी मिला था उनको। तो काफी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोई भी मिनिस्ट्री में स्टेशनरी की भी रिक्वायरमेंट है, आप बल्क में पेपर मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री है तो वो अपने पेपर से वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या लार्ज स्केल में अगर पेन बना रही है कोई कंपनी तो पेन प्रोवाइड मतलब उसको सेल कर सकते हैं। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी अगर कुछ बना रही है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स बना रही है तो वो इंटरेक्टिव बोर्ड्स भी उस पर मतलब मिनिस्ट्री को सेल कर सकते हैं। सो ये डाटा है कि कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड है जेम पोर्टल में। सो प्रोडक्ट कैटेगरी है 11,000, आप देख सकते हैं 11,000 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, 11,896, सो ऑलमोस्ट 11,900 प्रोडक्ट्स। ऑर्डर वैल्यू जो इतने मतलब 2016 से 24 विद इन 8 ईयर्स ऑफ मतलब विद इन 8 ईयर्स कितनी रही ऑर्डर वैल्यू इसने जनरेट की जेम पोर्टल ने, 8,58,000 करोड़। और सर्विस कैटेगरी जितनी रजिस्टर्ड है 322 कैटेगरी सर्विसेज लिस्टेड है इस जेम पोर्टल में। सो कितने सेलर्स रजिस्टर्ड है इसमें, 8.16 सेलर्स 16 लाख सेलर्स रजिस्टर्ड है। और प्रोसेस ऑर्डर जो लास्ट ईयर का 2023 का ऑर्डर है 1.52 लाख करोड़ और उसके पहले का है 1.06 लाख करोड़। सो ये कुछ डाटा है
जो ये जेम पोर्टल में ही अवेलेबल है कि कितना ईयर वाइज ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 21-22 में 1.06 था, और 2023 में ये बढ़ गया 1.52 लैक्स हो गया। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है इस पे। सो 2016 में लॉन्च हुआ, पर एक्चुअल वर्किंग मतलब एक्चुअल सब लोगों को पता चला 2020 में, और उसके बाद की ग्रोथ मतलब 4 साल में आप इतनी ग्रोथ देख सकते हैं इसमें। और कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया पेपर स्टेशनरी कुछ भी मतलब ये सब प्रोडक्ट्स हैं। पर कुछ ऐसे मेन प्रोडक्ट्स है जैसे एक ये ऑफिस फर्नीचर। तो ये फर्नीचर तो हर मिनिस्ट्री हर ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कि कोई भी ऑफिस हो, इसमें ये चेयर्स लगती है। तो अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स की है तो आप ये इजिली इस मिनिस्ट्री को सेल कर सकते हो। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स, अगर कोई बड़े वो हॉस्पिटल्स है जैसे एम्स हो गया, अगर एम्स को कोई सिलेंडर गैस ऑक्सीजन गैस का या ऐसे कुछ ऑर्डर करना है, तो वो जेम पोर्टल में जाके देखेगा कि कोई कोई बड़े मतलब कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है कि नहीं कि वो मुझे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कर सकता है इन बल्क क्वांटिटीज। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर तो हर मतलब कोई भी छोटा ऑफिस हो बड़ा ऑफिस हो, हर इसमें जरूरत होती है। तो अगर आपका कोई मैंने आप असेंबल्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हो मतलब कंप्यूटर का, या फिर मैंने खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें काफी बेनिफिट्स है। ये तो हो गया आपको रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जेम पोर्टल से। सो सेलर कैन एक्सेस टू द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट। सो नेशनल मतलब आप यहाँ पे दिल्ली में समझो, अब मैं एमपी में हूँ, पर कोई मिनिस्ट्री है वो कर्नाटका की मिनिस्ट्री है, पर उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो मैं वहां पे भी उसको सेल कर सकती हूँ। तो नेशनल वाइड आप कहीं भी सेल कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड है, कहीं की भी हो वो रजिस्टर्ड है। नो फीस, एक तो कोई फीस नहीं देनी है, ना रजिस्ट्रेशन के टाइम फीस देनी है, ना ही बाद में कोई फीस है कि हाँ ऑर्डर कोई दे रहा है तो उसको फीस देनी है, नहीं। द सेलर विल एबल टू व्यू द रीजन फॉर रिजेक्शन। अगर आपको कोई मतलब आपने बिड किया है या आपने टेंडर सबमिट किया, अगर आपको टेंडर नहीं मिल रहा है तो उसका रिजेक्शन का आपको इंटीमेशन भी आएगा, रिजेक्ट किया कि आपका गुड्स प्रॉपर नहीं है, जैसे उनको पैकेजिंग चाहिए थी वैसी पैकेजिंग नहीं है, या प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई इशू है, तो वो अगर कुछ भी ऐसा इशू है तो वो इन्फॉर्म किया जाता है उसमें। और डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो जब आप मतलब एक छोटी यूनिट माइक्रो या स्मॉल यूनिट अगर जब बोलती है कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपने प्रोडक्ट सेल किए, तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने वेबसाइट पे सेल कर मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि मैंने हाँ मिनिस्ट्रीज में मेरा प्रोडक्ट जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मेरा प्रोडक्ट जाता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और मतलब पब्लिसिटी के लिए भी उसका अच्छा मतलब और भी उसको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और प्राइसेस भी काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो ये बेनिफिट्स है जेम पोर्टल के। फिर नेक्स्ट है ट्रेंड्स, ट्रेड्स पोर्टल। ट्रेड्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। जो आपके जैसे आपने सेल किया कोई प्रोडक्ट, तो जो आपके डेटर्स है, क्योंकि आपने सेल किया आज सेल किया, आपको पेमेंट मिलेगी 30 डेज या 45 डेज के बाद। तो 30-45 डेज के लिए वो जो आपके डेटर्स है उसको डिस्काउंट करना, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल से भी कहा जाता है या बिल्स रिसीवेबल। तो जो उसको डिस्काउंट करना, वो एक मैकेनिज्म है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ये स्टेप आरबीआई ने लिया है टू रेगुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स बिटवीन एमएसएमई एंड लार्ज कॉर्पोरेट। सो ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया, क्योंकि जो स्मॉल स्केल मतलब ये एमएसएमई है, ये स्मॉल यूनिट्स है, उनको फंड्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो उनको इजीली फंड्स मिलता नहीं, कभी मतलब कोई बैंक्स दे नहीं रहा है, या फिर कभी कोलेटरल नहीं है उनके पास, या कभी कुछ प्रॉब्लम है, या लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ उनको इतना बीट करना है, या फिर नई मैन्युफैक्चर प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है, अगर क्वालिटी इशू है तो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना है, ये सब चीजों के लिए उनका जो फंड्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल है, वो कभी स्टक ना हो।
इसके लिए ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम बनाया जाता है। सो जो पेमेंट्स आपको 30 डेज 45 डेज के बाद मिलने वाली है, उसको अगर इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो एज ऑन डेट आपके पास फाइनेंस है, आप अपना कुछ नया अपना नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। नया जब तक आपको जो पुरानी पेमेंट्स आएगी तब तक आपका नया प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। और ये 3 वेबसाइट्स है, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इसमें जो जैसे आपने सेल किया टाटा मोटर्स को, एक बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स को सेल किया आपने, और फिर वो उसका जो बिल था, टाटा मोटर्स का जो बिल आपने वो इसमें लगा इस पोर्टल में सबमिट कर दिया कि मैंने ये बिल से टाटा मोटर्स को मैंने ये जो प्रोडक्ट है एनी पार्ट ऑफ द कार वो मैंने सेल किया था, वो उसका ये वैल्यू है, और इसकी पेमेंट डेज है 35 डेज। तो ये अब वो सिर्फ आपको वो इनवॉइस इसमें अपलोड करना है। तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपको पेमेंट पहले दे देगा। सिर्फ इसमें जो पेमेंट पहले दे देगा वो थोड़ा सा डिस्काउंटिंग सिस्टम है, तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। जैसे अगर बैंक में आप फाइनेंस लेते तो 8% या 9% में मिलता आपको, पर ये आपको बहुत ही कम रेट में 6 to 7%, मतलब 2-3% कम में आपको मिल रहा है। तो जो आपका सपोज 10 lakhs अगर आपको कहीं से या 1 crore रुपीज कहीं से मिल रहा है, और आपको इजीली मतलब विद इन ए वीक मिल रहा है या और भी उससे जल्दी मिल रहा है, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। भले आपको थोड़ा सा उसमें मतलब कम पैसे मिल रहे हैं, 6 to 7% कम काट के मिलेगा, मगर वो भी अच्छा है कि अगर आप ये 1 crore भी अगर किसी बैंक से फाइनेंस करते तो आपको 8 से 9% देना पड़ता, पर आपको 6 to 7% में इतने कम में मिल रहा है। और ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें और जो टाटा मोटर्स जो पेमेंट करनी है वो डायरेक्टली वो उस बैंक को करेगा। इसमें काफी बैंक्स भी इन्वॉल्व है, वो रजिस्टर्ड है, वो देते हैं फंड्स, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, ये रजिस्टर्ड है, या फिर लार्ज कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड है। तो जो पेमेंट टाटा मोटर्स को आपको करनी थी वो डायरेक्टली उनको करेगी, क्योंकि उन्होंने आपको पैसे पहले ही दे दिया था। तो डायरेक्टली वो बैंक को पेमेंट करेगी, फिर जब वो उसको 30 दिन के बाद पेमेंट करनी है तो आपको ना करके उस बैंक को करेगी। उसको तो वैसे भी पेमेंट करनी है 30 दिन के बाद, तो आपको करे या बैंक को करे। तो इसके क्या बेनिफिट्स है, इजी एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल इजीली मिल जाता है। कोलेटरल फ्री फंडिंग, आपको कोई इसमें ये फंडिंग मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। गेट फंड्स इन 25 आवर्स, सो 24 आवर्स में आपको फंड्स मिल जाते हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, 48 आवर्स मतलब 2-3 डेज में आपको फंड्स मिल जाते हैं। सीमलेस एंड सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो इसमें आपका कोई डिटेल्स इधर का उधर नहीं जाने वाला, आपका सिक्योर प्लेटफॉर्म है। फास्टर बिजनेस एक्सपांशन, सो जो आपको फंड्स मिल जाते हैं जल्दी तो आप कुछ भी एक्सपांशन कर सकते हैं, नया प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये ऑफ बैलेंस शीट बिल डिस्काउंटिंग, तो इसमें आपको जो बैलेंस शीट में ये कोई आपको अलग से एंट्रीज नहीं करनी पड़ती इसके लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स को वैसे भी पेमेंट करनी थी, तो टाटा मोटर्स एचडीएफसी बैंक को कर दिया, एचडीएफसी बैंक ने आपको पहले ही पैसे दे दिए, तो इसके लिए अलग से आपको एंट्रीज नहीं करनी पड़ती। सो ऑफ बैलेंस शीट डिस्काउंटिंग, कॉम्पिटिटिव डिस्काउंटिंग रेट जैसे बताया 6 to 7%, सो ऑलरेडी 2-3% कम से कम में मिल रहा है, तो काफी बेनिफिट्स है इसके। अगर आप को इजीली फंड्स मिल चाहिए तो आप इस पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने जेम पोर्टल देखा, ट्रेंड्स पोर्टल देखा, अब है एमएसएमई समाधान। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया किसी मिनिस्ट्री की, पीएसयू और किसी को, पर वो उसने जो 30 डेज 45 डेज जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको 15 डेज के बाद पेमेंट देना है, जो भी आपके टर्म्स एग्रीड हुए थे उस डेट पे आपको पेमेंट नहीं दी है, तो आप क्या करें। तो आप इस एमएसएमई समाधान में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपके डिलेड पेमेंट्स, जो भी आपके पेमेंट्स डिले हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है, एमएसएमई समाधान। सो आप ये चीज इसमें देख सकते हैं
MSME समाधान में ओनली इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस कवर्ड नहीं है। तो स्मॉल और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है जो बहुत कम है, 50 करोड़ से नीचे वाले जो फर्म्स है उनको कवर किया गया, क्योंकि वो बहुत छोटी है। अगर उनको पेमेंट टाइम से नहीं मिलेगा तो बंद ही हो जाएंगी। तो इसके लिए उनको इजीली पेमेंट्स मिलेंगे तो तभी उनका ग्रोथ हो सकता है। इसलिए ये MSME समाधान पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। और ये इस एक्ट के MSMED डेवलपमेंट एक्ट में मतलब उसमें रजिस्टर्ड है ये पोर्टल। तो और भी जो भी मैकेनिज्म है इस एक्ट के थ्रू ही होता है उनका। और स्टेट गवर्नमेंट के अलग, सब स्टेट्स गवर्नमेंट के अलग अलग है। एक काउंसिल्स है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। सो अलग अलग स्टेट्स में, जैसे MP स्टेट हो गया, महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, सो सब स्टेट्स के अलग अलग काउंसिल्स है। तो वो देखती है पेमेंट्स के रिलेटेड। सो ये कुछ डाटास है, जैसे कि कितने MSME पोर्टल पे, MSME समाधान पोर्टल में कितने एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। सो एप्लीकेशन फाइल बाय MSME 1,82,000। और कितनी म्यूचुअली सेटल्ड हो चुके हैं 17,000। और कितने येट टू रिव्यू बाय काउंसिल्स, जो काउंसिल स्टेट काउंसिल्स है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, उसमें 47,000 अभी भी पेंडिंग है। रिजेक्टेड कुछ ऐसे भी क्लेम्स है जो प्रॉपरली नहीं है, या फिर जैसे आपने वर्क ऑर्डर नहीं लगाया, या आपने सेल का कोई प्रूफ नहीं लगाया कि आपने इस मिनिस्ट्री को सेल किया था, वर्बली ये सब पूरा जो सेल इनवॉइस प्रॉपर नहीं है, या फिर गुड रिसीविंग नोट नहीं है आपके पास कि आपने इस मिनिस्ट्री को सेल किया था, पर जो उन्होंने गुड्स रिसीव किया उसका कोई साइन नहीं है, किसी का नाम नहीं है, कुछ ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है कि आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि आपने इस मिनिस्ट्री को सेल किया है और किस रेट पे सेल किया, कब सेल किया। तो ऐसा अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो रिजेक्ट भी हो सकता है। केसेस डिस्पोज्ड, जो कितने केसेस एक्चुअली सॉल्व हो गए 35,000। और ये करंटली अंडर कंसिडरेशन, ये प्रॉपर है पर अभी रिसॉल्व नहीं हुए 38,000 ऐसे केसेस भी है। और ये सब डाटा ये प्रॉपर वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। सो ये सब डाटा मैंने वेबसाइट से ही लिए। और ये वेबसाइट का व्यू है, कुछ इस तरह से ये दिखता है वेबसाइट। जब आप अगर रजिस्टर करना चाहते हो इस वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे आपका MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से एंटर करना पड़ेगा। फिर मोबाइल में आपका लिंक आएगा, मतलब मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको अपलोड करेंगे पूरा आपका मतलब, क्योंकि ये सब लिंक्ड है MSME पोर्टल से ही सब लिंक्ड है। तो आपके काफी डिटेल्स उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको बस आपका जो इशू है कि हम मेरी पेमेंट इतने टाइम से नहीं आई, तो वो जो सेल इनवॉइस और गुड रिसिप्ट नोट ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसमें अपलोड करना है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो अपलोड करना है। सो इसकी काफी बेनिफिट्स है। Since small and medium are covered, small and micro are covered, medium enterprises नहीं covered है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। और अगर ये सब जैसे आपको ये सब चीजें CA ने बताई कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आपको CA ने सब चीजें गाइड की, और जब CA ने अपना बिल दिया आपको रेज किया, पर आपने CA की पैसे नहीं दिए, तो CA भी क्या कंप्लेंट रेज कर सकता है? यस, CA भी अपना केस इसमें फाइल कर सकता है कि मेरी पेमेंट्स आई नहीं है, टाइमली पेमेंट्स नहीं हुई है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस भी कवर्ड है, तो CA भी रजिस्टर कर सकता है कि मेरी पेमेंट्स टाइमली नहीं आई है। सो डॉक्यूमेंट्स क्या है? PDF डॉक्यूमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर ऑफ और इनवॉइस और परचेस ऑर्डर। एक अगर परचेस ऑर्डर ओरल है तो एफिडेविट लगेगा। सो जो आपको जो पेमेंट मिलेगा, तो आपको पेमेंट तो मिलेगा ही। सपोज आपको पेमेंट है 1 करोड़ रुपीज, तो आपको 1 करोड़ रुपीज मिलेगा प्लस इंटरेस्ट 3 times द इंटरेस्ट ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI। सो जो उसका तभी का जो रेट होगा, सपोज 9% है,
तो 3 टाइम्स जो इंटरेस्ट होगा वो भी उसके साथ मिलेगा। और पेमेंट्स विद इन 15 डेज या 45 डेज जैसे भी टर्म्स है उसमें हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमने ये सब चीजें कवर कर ली। मॉनिटरिंग द डिलेड पेमेंट information is available on the public domain, so all the information is available on the public domain। so पब्लिक डोमेन में दिख जाएगा कि आप एक अच्छा मिनिस्ट्री नहीं हो, ये नहीं हो कि आप टाइमली पेमेंट्स नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें ना हो तो इसकी वजह से भी लोग कभी कभी अपनी ब्लैक लिस्टिंग ना हो जाए, इसके लिए भी जल्दी पेमेंट कर दे या टाइमली पेमेंट कर दे। इसके अलावा भी गवर्नमेंट की काफी सब्सिडीज है और इंसेंटिव्स है एमएसएमई स्कूल के लिए। जैसे आई बिलोंग टू एमपी स्टेट, सो एमपी स्टेट्स की काफी एक एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसीज है। सो वो सब्सिडी किसके लिए? इंडस्ट्रियल यूनिट। सो इसी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, नॉट फॉर सर्विस इंडस्ट्री। सो यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री कवर्ड नहीं है। जीएसटी नंबर, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। मिनिमम ऑपरेशनल पीरियड 5 ईयर्स का होना चाहिए। जो भी आप प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जैसे राइस मिल, फ्लोर मिल, जो भी आप सेटअप कर रहे हैं वो 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। और डेट ऑफ प्रोडक्शन या डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 2020। कि ये 2020 पर पॉलिसी है, इसीलिए इसके आफ्टर जो भी सेटअप होगा, अगर 2020 के बाद कोई प्लांट लग रहा है तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। यूनिट्स टेकन बेनिफिट सब्सिडी अंडर एनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगर कोई और बेनिफिट लिया किसी अलग स्कीम में तो इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हर स्कीम में पैसे नहीं दे सकते। किसी एक स्कीम में आपको पैसे देगी तो दूसरे स्कीम में नहीं देगी। तो आप एक के लिए एलिजिबल हो तो दूसरे के लिए ऑब्वियसली अनएलिजिबल हो। सो आपको सब्सिडी, अगर आपका कोई माइक्रो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए 40 lakhs का। अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज है तो मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 100 lakhs का। अगर कोई मीडियम आपका इंडस्ट्री है तो उसका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप जो भी प्लांट लगा रहे हैं वो एटलीस्ट इतने, अगर कोई आपका फ्लोर मिल है मीडियम साइज की तो उसका 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट समझो है, तो वो मीडियम इंडस्ट्री है, वो एलिजिबल है। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी? अगर हमने सपोज 40 lakhs का प्लांट लगा भी लिया तो हमको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 1 करोड़ टू 10 करोड़ का, अगर कुछ भी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है तो सब्सिडी आपको 40% मिलेगी। इवन 10 to 50 करोड़ से सब्सिडी आपको 40 करोड़ ही मिलेगी। Hello, is there any network problem happened at Nirmala ma'am? So I request all the participants to please be there. She will rejoin within 2 minutes.
सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्टेड ड्यू टू नेट इशू। सो कितनी सब्सिडी मिलेगी हम ये जान रहे हैं, अगर कोई मैम, हम प्लांट। मैम जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन मैम। यस, ओके। सो हमको सब्सिडी कितनी मिलेगी अगर एमपी में कोई यूनिट लग रहा है, वेदर इट्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर इन पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ टू 50 करोड़, मतलब जो टर्म्स है, अगर प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसका बेनिफिट हम, अगर 10 करोड़ से नीचे है तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, और 10 करोड़ के ऊपर अप टू 50 करोड़ से तो 7 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। सपोज 10 लाख मिलने वाला है तो 2,50,000 हर एक ईयर में मिलेगा। 2,50,000, देन 2,50,000, 10, 2,50,000। ये जो आपको 40% जो सब्सिडी है, जो हर साल मतलब 2,50,000, अगर 10 लाख मिल रहा है तो हर साल 2.5, मतलब 10% मिल रहा है। 40 लाख का हर ईयर में 10% मिलता है। तो अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर है या एस, तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपका जो सब्सिडी है 48% हो जाएगा। 40 एनम है, तो 40% प्लस 2% ईच ईयर 4 ईयर्स के लिए, तो 48% सब्सिडी मिल जाएगी। प्लस अगर वुमेन के साथ साथ वो एसटी और एससी कास्ट को भी बिलोंग करती है, तो आपकी सब्सिडी 2.5 पर ईयर हो जाएगी। तो आपकी सब्सिडी, टोटल सब्सिडी 50% हो जाएगी। तो अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो हर साल आपको 12.5% सब्सिडी मिलेगी। वही जो 10% मिल रही थी, अब 12.5% हर साल मिलेगी 4 साल के लिए। और वही अगर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका जो भी टर्नओवर है वो 25 to 50% टर्नओवर अगर एक्सपोर्ट होता है तो आपको 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलते हैं। तो अगर वुमेन कैटेगरी नहीं है, स्मॉल ये SC ST नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट 40% था, 2% एक्स्ट्रा, तो वो 48% हो गया। अगर एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं तो 48% सब्सिडी मिल रही है। और एक्सपोर्ट अगर मोर देन 50% है, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में कम से कम सेल कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है फॉरेन में ज्यादा डिमांड में, तो आप फुल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं 50% से ज्यादा, तो आपको 3% पर ईयर मिलेगा। तो आपकी जो सब्सिडी हो जाएगी 12 प्लस 40, 52%। सो ये सबसे ज्यादा सब्सिडी इसमें मिल सकती है अगर कोई आपके यूनिट्स है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अगर आपको ये सब्सिडी अवेलेबल करनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। एप्लीकेशन अंडर, सो अगर एमपी में, अगर हम ये एमपी की सब्सिडी है तो हम एमपी में जो एमपी MSME प्रमोशन स्कीम का जो पोर्टल है उसमें सबमिट करना है हमको डॉक्यूमेंट्स। सो विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसके विद इन 90 डेज हमको ये अपलोड करना पड़ेगा कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और हम ये सब्सिडी को अवेल करना चाहते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब MSME का रजिस्ट्रेशन हमको अपलोड करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, और एक सर्टिफाइड वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है वो जस्टिफाइड, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, तो 40 लाख माइक्रो और ये सब के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, तो हमको एक सर्टिफिकेट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी कि प्लांट एंड मशीनरी में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है या चार्टर्ड इंजीनियर, वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा, सर्टिफिकेट देगा कि हाँ जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ये 40 लाख है, ये 1 करोड़ है, तो बेस्ड ऑन दिस ये स्कीम उसको एलिजिबल
और सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल टर्नओवर फ्रॉम जीएसटी तो एनुअल टर्नओवर कितना है आपका वो भी रिक्वायरमेंट होगा। सेक्शन लेटर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ एनी, अगर आपको कहीं और से भी फाइनेंस मिल रहा है या कुछ बेनिफिट्स ले रहे हैं आप तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन अंडर एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, अगर कोई भी आपने अप्लाई किया है एटलीस्ट आपको अभी उसमें पैसे नहीं मिले इसलिए आप इसमें भी स्कीम में भी अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको डिटेल तो देनी पड़ेगी, सबकी डिटेल्स। आप अगर इसमें दे रहा जीएम पोर्टल में भी या कुछ है आपका, सब अलग अलग स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की, उसमें अगर बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ये तो हो गया प्लांट लगाने के, प्लांट एंड मशीनरी के जो परचेज करना है या उसको प्लांट लगाने की रिक्वायरमेंट्स है तो उसमें सब्सिडी। पर जब अगर एक प्लांट लगता है, जैसे कि अगर इंडस्ट्री लगती है तो उसका एरिया भी काफी डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रांस रोड बनाना जरूरी पड़ता है कि लेबर्स कैसे आएंगे या वेयर हाउस मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट से वेयर हाउस यूनिट तक हमारा प्रोडक्शन कैसे जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कैसे जाएगा, तो उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देने के लिए देती है। तो अगर जो भी आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट्स है 1 करोड़ to 10 करोड़ का है तो उसकी सब्सिडी मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख है, मतलब 50%। और सब्सिडी 50% है, जो भी आपका जो रहेगा, जैसे अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसका 50% होगा 2.5 लाख। तो 2.5 मिनिमम जो भी आपका होगा और मैक्सिमम अमाउंट होगा 25 लाख, अपर लिमिट है 25 लाख। अगर यही आपका 10 करोड़ to 50 करोड़ से है तो आपका मैक्सिमम लिमिट है 100 लाख। तो क्या एलिजिबल एक्सपेंसेस है, जैसे रोड डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर प्लांट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो मोबाइल टावर्स नहीं है, ये जो भी है तो वो अगर आप वो सेटअप कर रहे हैं उस एरिया में तो वो उसके भी एक्सपेंसेस आप मतलब उसकी भी सब्सिडी ले सकते हैं। वाटर सप्लाई, वाटर तो बहुत जरूरी है, अगर कोई भी प्रोडक्शन है तो उसके लिए वाटर सप्लाई जरूरी है। तो उसका अगर आप उसका पूरा पाइपलाइन करवा रहे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं तो आप उसकी भी सब्सिडी ले सकते हैं। इसके अलावा भी और सब्सिडी आप ले सकते हैं अगर आपने आईसीओ सर्टिफिकेशन करवाया है और आईसीओ सर्टिफिकेशन में आपको कुछ मतलब सपोज 1 लाख रुपीज खर्चा हुआ तो आप उसकी भी सब्सिडी ले सकते हैं कि आप उसको रिइम्बर्स करवा सकते हैं, क्योंकि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो तो आप उसका भी, आप अगर कोई पेटेंट जो फार्मा रिलेटेड कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट जेनेरिक मेडिसिन बना रहे हो या कुछ मेडिसिन बना रहे हो जो उसके लिए पेटेंट्स आपने लिया है तो आप उसको भी रजिस्टर कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर सपोज 5 लाख रुपीज है तो आप उसको भी रिइम्बर्स करा सकते हो। तो और काफी जो गवर्नमेंट में जैसे रॉ मटेरियल असिस्टेंस, अगर आपको रॉ मटेरियल जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके रॉ मटेरियल आपको इजीली नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप ये NSIC के वेबसाइट पे जाके इजीली अवेलेबल कर सकते हो और रेट्स भी काफी अच्छे होंगे उसमें। अगर आप जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट उसकी आप एग्जीबिशन लगाना चाहते हो वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो उस एग्जीबिशन का जो भी खर्चा आएगा उसको भी रिएम्बर्स करेगी गवर्नमेंट। तो काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि जो भी आप मतलब आप करो, हम तुम्हारे साथ है, ऐसा है कि आप पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करो, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, किसी भी फेज पे डिफिकल्टी आ रही है तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए रेडी है। फिर एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो ये ऑल ओवर इंडिया, सिंस इट इज प्राइम मिनिस्टर इट इज नॉट अ स्टेट, सो सेंट्रल ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल है। सो टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया, सो बेसिकली जो रूरल एरियाज में है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये स्कीम्स है। टू सेटअप माइक्रो एंटरप्राइजेस, सो कोई भी एक माइक्रो प्लांट भी वहां पे अगर सेटअप होता है तो उस काफी लोगों को बेनिफिशियल होगा, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वहां पे। जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, जैसे अभी
मोदी जी ने विश्वकर्मा डे पे विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा एक स्कीम भी निकाली थी जिसपे काफी बेनिफिट्स मिल रहे थे। जो भी हैंडीक्राफ्ट्स या पोट्री आइटम्स, जो मटका उटका या दिया बना रहे हैं या कोई हैंडलूम रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको, जैसे गोल्ड स्मिथ भी है, तो उनको भी प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्शन के लिए या किसी चीज के लिए उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बैंक बैंक दे नहीं देते, क्योंकि इनकी कोई फिक्स दुकान नहीं होती है। कभी यहाँ पे स्टॉल लगाया, कभी वहां पे स्टॉल लगाया। अगर कोई दिया बना रहा है या मटका बना रहा है, कुछ ऐसे आर्टिस्ट है, तो वो कहाँ से पैसे लेके आए? तो वो गवर्नमेंट ने उनको काफी बेनिफिट्स दिए, पीएम विश्वकर्मा पॉलिसी, तो उसमें उनको काफी बेनिफिट्स मिल। तो इसमें एलिजिबिलिटी आप मतलब कैसे आपको फंडिंग मिल सकते हैं? अगर आपकी एज 18 ईयर्स के बाद मतलब 18 ईयर्स के ऊपर है, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ 8 पास। सो सिंस क्वालिफिकेशन एकदम मिनिमम रखिए कि कोई भी मतलब इसका बेनिफिट ले सके। रूरल एरिया में मोस्टली स्किल्ड लेबर्स नहीं होते हैं। अगर वो 8वीं तक भी पढ़ा है, 10वीं नहीं किया है, तो ये वो बेनिफिट ले सकता है। कोई एक प्लांट छोटा सा मतलब ऑपरेट कर सकता है, तो उसके लिए मतलब उस सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? अगर वो बिजनेस या सर्विस रिलेटेड कुछ कर रहा है, तो उसकी 20 lakhs। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहा है, तो उसकी मिनिमम मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए 50 lakhs, तब उसको सब्सिडी मिलेगी। और इसमें एलिजिबिलिटी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो भी इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। कुछ सोसाइटीज भी होती है कि मतलब जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि फीमेल्स का ग्रुप होता है मोस्टली, 8-10 में मतलब फीमेल से एक ग्रुप बनाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई जैसे फीमेल्स का कोई अचार पापड़ अच्छा बना रही है, तो वो सब मिलके बल्क में बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। पिकल्स का मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि मतलब वो अगर इंडिविजुअल करेंगे तो कम लेवल पे करेंगे, मगर वही 8-10 जन मिलके करेंगे साथ में, तो एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें एलिजिबल है। सो इसमें नो इनकम सीलिंग, कोई आपका ये मतलब जो इन्वेस्टमेंट था, वो आप कितना अर्न कर रहे हैं, क्या अर्न कर, वो कोई इनकम सीलिंग नहीं है। सेटिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग यूनिट्स अवेल्ड एनी आर नॉट एलिजिबल। सो अगर किसी में भी आपने कोई बेनिफिट्स लिया, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो आपको सब्सिडी मिलेगी कितनी? तो अगर जनरल जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो आपको 10% अपना खुद का लगाना पड़ेगा, और आपको सब्सिडी, अगर रूरल अर्बन एरिया में तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगी, और रूरल एरिया में है तो 25% मिलेगी। तो समझो आपने अगर 10 lakhs रुपीज का कोई प्रोजेक्ट लगाया, नहीं 20 lakhs मिनिमम, तो 20 lakhs का अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया आपने, तो 2 lakhs रुपीज आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा। मतलब आपका खुद 2 लाख रुपीज आप करेंगे, और जो बेनिफिट्स लेंगे, आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 25%। अगर रूरल एरिया में 25%, अर्बन एरिया में तो 15%। अगर यही आप ST SC या OBC क्लास या वुमेन है, या कोई हैंडीकैप्ड है, और या बॉर्डर एरिया, हिली एरियाज में है, तो आपको सिर्फ 5% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और सब्सिडी आपको अगर अर्बन एरिया में है तो 25%, और रूरल एरिया में है तो 35% मिलेगी। तो ये अलग अलग सब्सिडी के और कुछ बैंक भी फंड्स कराते हैं MSME के लिए। तो कौन सी स्कीम, जैसे कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये गवर्नमेंट की। तो कोलेटरल फ्री मतलब कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है बैंक्स को। और करंटली अप टू 5 करोड़ से ये फाइनेंस होता है, बोथ फॉर टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको मतलब अवेल कर सकते हैं। और इंश्योरेंस प्रीमियम करंटली अराउंड, सो उसके साथ में एक इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, वो तो 1% इंश्योरेंस। और एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है,
ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है नॉर्मल, ये बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करने के लिए ये स्कीम है। तो इसमें लोन जो प्रोवाइड करेगा वो 50 लाख का। तो गवर्नमेंट चाहती है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति, तो ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स भी अच्छा बिजनेस करे, लार्ज लेवल पे बिजनेस करे, अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनको भी इजीली लोन प्रोवाइड करे। तो इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ये लोन प्रोवाइड होता है, लोन अप टू 50 लाख। और ये भी टर्म लोन एज वेल एज वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए मिलता है। इंटरेस्ट रेट बहुत कंसेशनल होता है फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस, फास्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, और सेपरेट डिपार्टमेंट इन सम नेशनलाइज्ड बैंक फॉर दिस स्कीम। सो कोई नेशनलाइज्ड बैंक है तो उसके उसमें सेपरेट डिपार्टमेंट है इसके लिए। तो ये मोस्टली बहुत सारी बातें होगी एमएसएमई के रिलेटेड, कि एमएसएमई ये करेगा, एमएसएमई को यहाँ से फंड्स मिलेंगे, एमएसएमई को ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये जो मतलब अगर सीए गाइड करेगा तो सीए को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या तो और सीए किस एरिया में प्रैक्टिस कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एडवाइजरी दे सकता है, सब ये पॉलिसीज बता सकता है अपने क्लाइंट्स को। फिर ये सब के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो भी लगती है वो सब बना सकता है। फिर एप्लीकेशंस वेरियस, अगर जेम पोर्टल में एप्लीकेशन फाइल करनी है, या सब्सिडी के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, या कोई लोन के लिए जैसे कोलैटरल फ्री लोन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो ये सब लोन प्रोसेसिंग का वो कर सकता है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ईयरली क्लेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सबमिट कर सकता है। लाइजनिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्री से अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो वो कोऑर्डिनेशन कर सकता है। तो वो मतलब एमएसएमई को गाइड करते करते वो अपनी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी कर सकता है। एमएसएमई समाधान में फाइलिंग करवा सकता है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ एमएसएमई कि आई मीन वी विल असिस्ट यू उद्यम रजिस्ट्रेशन में, कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैसे होगा। फिर जेम पोर्टल में भी उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मतलब जेम पोर्टल में भी वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर सकता है, तो उनको भी स्टॉक ऑडिट्स, कॉन्ट्रेंट ऑडिट्स, और या बल्क में अगर कहीं आईटीआर फाइलिंग है, या कुछ ऐसे कुछ ऑडिट्स वर्क है, या कुछ अलग टाइप का वर्क है, तो वो वहां से भी टेंडर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप किसी मतलब एमएसएमई को डेवलप कर रहे हैं तो एमएसएमई के साथ साथ आपका भी प्रैक्टिस डेवलप होगा। ये सब तो हो गया स्कीम्स, और ये मतलब बैंक से इससे मतलब फंडिंग, ये सब्सिडीज से स्कीम। अगर आप ये स्कीम्स से नहीं जाना सकते, आप चाहते हैं कि हम मतलब थोड़े दिनों के बाद एक आईपीओ लाए, तो एसएमई आईपीओ में भी लिस्ट कर सकता है। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे नॉर्मली दूसरे नॉर्मली जैसे आईपीओस होते हैं, वैसे एसएमई के भी अलग आईपीओस होते हैं जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और जो नॉर्मल आईपीओस होते हैं वो मेन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, मेन बोर्ड पे होते हैं। सो बाय सेलिंग द शेयर्स टू द ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लाइक बीएससी, अगर बीएससी का है तो बीएससी एसएमई, सो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एनएससी का है, अगर एनएससी में आपको लिस्ट करना है तो एनएससी इमर्ज करके प्लेटफॉर्म है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अगर आईपीओ के लिए जाते हैं तो आपको इजीली आप सोर्स मिल मतलब अ, आपकी जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है आपको इजीली मिल सकते हैं। तो आप एक्सपांशन कर सकते हैं, आपके जो भी बिजनेस गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं, आपको रिसोर्सेस काफी मिल जाएंगे। और ये पहले ये नहीं था, मतलब एसएमईस अपना आईपीओ नहीं ला सकते थे पहले, पर 2012 में बीएससी और एनएससी jointly inaugurated two exchanges स्पेशली फॉर दिस एसएमई आईपीओस। सो 12 से लिस्टिंग स्टार्ट हो गई। बीएससी एमएससी प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी एमर्ज मैनेज बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर हम आईपीओ के लिए जाते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए, और मैक्सिमम 25 करोड़। और जो अगर मेन बोर्ड पे हम लोग जाते हैं तो मिनिमम 10 करोड़ होता है।
तो अगर आपके 1 करोड़ की भी रिक्वायरमेंट है कि 1 करोड़ मुझे फंड रेज करना है, तो आप अपना आईपीओ ला सकते हैं। मिनिमम आईपीओ ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है मिनिमम 50 ही होते हैं, और ये मेन बोर्ड पे मैक्सिमम 1000, मिनिमम 1000 होनी चाहिए। अंडर राइटिंग आईपीओ, तो ये अंडर राइटिंग होना जरूरी है, आईपीओ एसएमई मैंडेटरी है। तो ये मतलब जो भी मर्चेंट बैंकर है उसकी अंडर राइटिंग लेता है, ये कि मैं करूंगा, और इसमें मेन बोर्ड पे नॉट मैंडेटरी। सिंस एसएमई को प्रमोट करने के लिए है ये सब आईपीओ लॉन्चिंग ये सब, तो इसमें नॉर्म्स काफी लीनियंट रखे हैं। पर जब मेन बोर्ड पे हम लोग जब आईपीओ लाते हैं तो वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पे होते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स जो एसएमई के होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज ही चेकिंग करता है पूरी। जैसे बीएससी में कर रहे हैं तो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज ही आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स मॉनिटराइज करेगा। एनएससी में कर रहे हैं तो एनएससी करेगा, बट अगर हम मेन बोर्ड पे कर रहे हैं तो सेबी करेगा। और अलॉटमेंट साइज ऑफ आईपीओ, तो इसमें सिंस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें कम है एसएमई में, तो नॉर्मली जो लॉट साइज होता है वो ज्यादा होता है, तो अलॉटमेंट वैल्यू ज्यादा हो जाती है। आपको मिनिमम सपोज 2000 शेयर्स लेने ही है किसी कंपनी के, तो नॉर्म ऐसे मतलब 2000 या 600 शेयर्स लेनी है, मतलब ऐसे होते हैं, तो मिनिमम आपका अलॉटमेंट साइज सर 1 लाख रुपीज हो जाता है। और वही अगर आप मेन बोर्ड पे जाते हैं तो आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 टू 15,000 हो जाता है। तो जब भी आप अगर एसएमई प्लेटफॉर्म पे अगर किसी एसएमई को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी उसमें डिटेल रिसर्च करके करिए, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़े अमाउंट का है, 1 लाख रुपीज का, पर ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है। अभी कुछ एसएमई आईपीओ आए थे वो काफी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, काफी अच्छे नंबर्स के साथ सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि वो जो सेक्टर में जो इंडस्ट्री थी वो सोलर एनर्जी सेक्टर में थी। तो सोलर एनर्जी आज के डेट में एक रनिंग सेक्टर है, तो उसका सब्सक्रिप्शन अच्छा ही होगा। इसीलिए जब भी आप किसी इंडस्ट्री में एसएमई में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री वाइज देखिए कि किस सेक्टर में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर वो आज के ट्रेंड में काफी मतलब जैसे ईवी में कोई है, तो ईवी में अगर है तो वो नॉर्मली अच्छा सब्सक्रिप्शन देगा, यही 1 लाख का आपका वैल्यू अच्छा खासा आपको प्रॉफिट कमा के देगा। आईपीओ पीरियड 3 to 4 मंथ्स, सो 3 to 4 मंथ्स में पूरी पूरी प्रोसेसिंग हो सकती है। मतलब आपने आगे अभी स्टॉक एक्सचेंज को ड्राफ्ट दिया और फिर पूरा डॉक्यूमेंट्स मर्चेंट बैंकर से मिलना, ये सब कुछ होना, विद इन 3-4 मंथ्स में आईपीओ आ जाता है। पर जब आप मेन बोर्ड में लिस्टिंग करते हैं तो आपको ज्यादा ज्यादा समय लग जाता है, 6 to 6 मंथ्स भी लग जाता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एसएमई में है एवरी 6 मंथ्स। सिंस एसएमई को हम लोग ज्यादा मतलब गवर्नमेंट भी ज्यादा तंग नहीं करना चाहती कि हाँ मतलब, तो इसलिए 6 मंथ्स में ही मतलब ज्यादा फ्रिक्वेंटली उसके रिक्वायरमेंट्स है कि ये डॉक्यूमेंट दो वो डॉक्यूमेंट दो ये रिपोर्टिंग देना है, नहीं, वंस इन एवरी 6 मंथ्स। बट ये मेन बोर्ड में है तो 4 मंथ्स। तो जैसा बताया बीएससी में अगर है तो बीएससी एमएसएमई अलग प्लेटफॉर्म है, और एनएससी में है तो एनएससी इमर्ज करके एक अलग प्लेटफॉर्म है एसएमई लिस्टिंग के लिए। कौन सी कंपनीज होनी चाहिए, तो ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, कंपनीज होनी चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 या 2013। पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ से लेस होना चाहिए। नेटवर्क 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स का। ऑपरेशनल हिस्ट्री मस्ट बी ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स से अगर अगर कोई इंडस्ट्री अभी स्टार्ट हुई है 2 साल के बाद अगर आईपीओ लाना चाहती है तो नहीं ला सकते। एटलीस्ट 3 इयर्स की आपकी वर्किंग होनी चाहिए, तभी उसके बाद ही आप आईपीओ ला सकते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 लाख, और मिनिमम एटलीस्ट शेयर होल्डर 50 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल का आपका ऑपरेशनल बिजनेस है तो एटलीस्ट 2 इयर्स में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप आईपीओ ला सकते हो। अगर 2 इयर्स में प्रॉफिट नहीं है तो अब आप अपना आईपीओ नहीं ला सकते। अंडर राइटिंग मैंडेटरी विथ 15% बाय बैंक मर्चेंट बैंकर। सो जो मर्चेंट बैंकर जो भी ये पूरा
आपके डॉक्यूमेंट्स लगाएगा स्टॉक एक्सचेंज में और ये सब, तो उसको अंडर राइटिंग देनी पड़ेगी 15%। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है कि कितनी कंपनीज आज तक, मतलब 2012 से 24 तक कितनी लिस्ट हो चुकी है एसएमई प्लेटफॉर्म पे। तो ये बीएसई का है डाटा। तो 510 कंपनीज अभी तक लिस्ट हो चुकी है। मार्केट साइज इन कंपनी का 1,69,800 है। टोटल मनी रेस्ड, तो रेज जो हुआ था वो कैपिटल था 6,787 करोड़, और ये अब आज का मार्केट कैप है 169। नंबर ऑफ कंपनीज माइग्रेटेड टू मेन बोर्ड। सो आप आज एसएमई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो रहे हो, पर थोड़े दिनों के बाद जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो आप मेन बोर्ड पे भी ट्रांसफर हो सकते हो। तो 510 से 185 कंपनीज है वो मेन बोर्ड पे रजिस्टर हो चुकी है। सो नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड एज ऑन डेट 325। तो 510 से 185 अगर मेन बोर्ड में ट्रांसफर हो गई है तो 325। नंबर ऑफ कंपनी सस्पेंडेड, सो कुछ कंपनीज बंद हो गई है किसी रीजन से, या कुछ भी है, या लिस्टिंग उन्होंने हटा दी है, या कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर उन्होंने नहीं किए तो स्टॉक एक्सचेंज से वो लिस्टिंग हट गई है, तो ऐसी कंपनीज है वो 29 कंपनीज है। नंबर ऑफ कंपनीज एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, तो आज की डेट में अगर हम किसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी एसएमई में पैसे लगाना चाहते हैं, तो 285 कंपनीज के शेयर्स दिखेंगे हमको। अगर हम इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ कंपनीज ट्रेडेड 221। तो वो था बीएसई का डिटेल्स। यही जब एनएससी इमर्ज पे जाते हैं तो नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड एज ऑन डेट इज 397 and number of companies migrated to main board is 138। और इस SME companies listed on exchange platform NSE emerge platform process rupees 1 lakh करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो जो जिस कंपनी 397 जो कंपनीज है उनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, और जो फंड रेज किया है उन्होंने मोर देन 7,800। सो हम अगर लिस्ट करते तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एनहांस्ड विजिबिलिटी, क्योंकि अगर जैसे अब पहले हम जैसे अगर कोई कंपनी है वो एमपी में रजिस्टर्ड, मतलब एमपी में रजिस्टर्ड है, एमपी में वर्किंग कर रही है, तो एमपी स्टेट को या नियर बाय एरियाज को ही पता चलेगा। जैसे सतना में है तो रीवा, मैहर या जबलपुर तक ये उनको पता रहेगा कि हाँ ये ऐसी इंडस्ट्री जो अच्छा मैन्युफैक्चर कर रही है कोई प्रोडक्ट। पर जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं किसी मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, तो ऑल ओवर इंडिया के लोगों को पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है, इसका टर्नओवर अच्छा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो एनहांस, तो आपको ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आते हैं। तो एनहांस विजिबिलिटी, तो आपका विजिबिलिटी बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि जो कंपनी ऐसे ही है और जो लिस्टेड कंपनीज है, ऑब्वियसली जो लिस्टेड कंपनीज है उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज है वो नॉर्मली जैसे अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिला है तो वो बैकआउट नहीं करती, प्रोडक्ट डिलीवरी ऑन टाइम होते, क्वालिटी इश्यूज नहीं होते, हर चीज में बेनिफिशियल, तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर दो कंपनीज है, जो एक नॉन लिस्टेड कंपनीज है और एक लिस्टेड कंपनी है, तो ऑर्डरली लिस्टेड कंपनी को ऑर्डर ज्यादा मिलेगा। एसेस टू कैपिटल, तो कैपिटल आपको इजीली मिल जाता है। नंबर ऑफ बाय, सबने अगर 1 लाख रुपीज भी लगाया तो आपको इजीली कैपिटल मिल गया, मतलब आपको बैंक की जरूरत नहीं पड़ी, कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई स्कीम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको डायरेक्टली आईपीओ 2 इयर्स के प्रॉफिट होना चाहिए बस, अब 3 इयर्स ऑपरेशनल होने चाहिए, और आप इजीली आईपीओ में जा सकते हो और आपका कैपिटल आप रेज कर सकते हो फॉर एक्सपांशन। लिक्विडिटी फॉर प्रोमोटर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, अगर कोई पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में तो आप उसको एग्जिट भी दिला सकते हो कि आपने फंड्स लिए और उनको एग्जिट देके, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर कोई फंड्स लगाएगा आपकी कंपनी तो वो उसको आपको प्रॉफिट्स देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। पर जब आपके पास पैसे आ गए तो आप उसको पैसे रिटर्न करके आप अपने वापिस अपने पास ले बाय बैक कर सकते हैं, तो आप फुल प्लेज फिर से ओनर बन सकते हैं। जैसे अगर 5-10% आपने किसी को दिया है
तो आप उसको वो 5-10% पेमेंट करके वो अपने पूरे 100 शेयर्स अपने पास ले सकते हैं, ओनरशिप पूरी अपने पास आ जाएगी। करेंसी फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए भी जाना चाहते हो तो आपको इजीली जा सकते हो। इंक्रीज इन वैल्यूएशन, आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप ओवरऑल आपका कंपनी का मीन्स क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, आपका ऑर्डर बढ़ रहा है तो आपकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो आपका अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो आपको कैसे करनी है लिस्टिंग, उसके लिए 5 P's है। पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको लिस्टिंग के लिए जाना है तो कंसल्टेंट को, सीए या मर्चेंट बैंकर्स, उनको पहले वैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूएशन रजिस्टर वैल्यूअर को भी अपॉइंट करना है, इश्यूअर और मर्चेंट बैंक को अपॉइंट करना है कि मुझे इस आईपीओ लाना है, मेरी कंपनी का क्या वैल्यूएशन होगा, तो मैं कैसे कैसे डील कर सकता हूँ, वेदर मैं जो मेरी वर्किंग है प्रॉपर है, ये सब पूरा कंसल्ट करना पड़ेगा पहले अपने कंसल्टेंट से, मर्चेंट बैंकर से। फिर प्रिपरेशन, तो जैसा वो गाइड करेंगे फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस, प्रिपेयर फॉर आईपीओ डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग फॉर द आईपीओ स्ट्रक्चर, मीन्स आप इक्विटी में इशू करना चाहते हो, डेप्ट इशू करना चाहते हो, या क्या आप किसका आईपीओ लाना चाहते हो, या इक्विटी आईपीओ स्ट्रक्चर मीन्स आप रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना देना चाहते हो, या बड़े इन्वेस्टर्स कितने होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, शेयर इश्यूएंस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसका प्रिपरेशन। फिर प्रोसेस, कैसे प्रोसेस बढ़ेगा कि पहले क्या करना पड़ेगा, फिर पहले ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करना पड़ेगा बीएससी और या एनएससी का है तो, और सेबी को, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, फिर अप्रूवल देंगे, फिर वो प्रोस्पेक्टस फाइल भी तो होगा तो आरओसी में फाइल होगा और प्रोस्पेक्टस, फिर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहले ये 3-4 महीने का जो प्रोसेस टाइम था, इस 3-4 महीने में ये सब काम हो गया। फिर एक्चुअल डेट आए कि आपका आईपीओ आज चालू होगा, मतलब नॉर्मली आईपीओ जो होता है वो 3-4 डेज के लिए ओपन होता है, कभी कभी 5 डेज के लिए ओपन होता है। तो टाइमली ओपनिंग ऑफ द आईपीओ एंड टाइमली क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ मीन्स विद इन, सपोज आज आईपीओ आपका हुआ तो आपको ट्यूसडे तक आपको खत्म करना है आपका आईपीओ, तो टाइमली आपने आईपीओ क्लोज कर दिया। फिर लिस्टिंग, फिर लिस्टिंग के लिए भी आपका टाइम गैप होता है, मीन्स जैसे फर्स्ट टू 5th से 10th तक आपका आईपीओ का ये था कि ओपन रहेगा, फिर लिस्टिंग आपकी 15th को होगी, तो आप पहले ही आपने बता दिया था कि लिस्टिंग 15th को होगी, तो 5 दिन का आपका गैप मिल गया, तो उसमें आपका जो जिसको अलॉट नहीं हुए तो उसको रिफंड जा रहा है, और जिसको अलॉट हुए तो उसको अलॉटमेंट लेटर गया, मतलब ईमेल के थ्रू या नोटिफिकेशन गया कि आपको अलॉट हुए शेयर्स, और लिस्टिंग के टाइम पे मिल जाएगा आपको। और लिस्टिंग कितने में, प्रीमियम में हो रही है, डिस्काउंट मतलब कम प्राइस में हो रही है, तो उससे भी बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो काफी जो इन्वेस्टर्स है वो इसमें लिस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे सपोज कोई शेयर 250 रुपीज का है, लिस्टिंग में उसको मतलब 30% ग्रोथ मिल रहा है, तो काफी अच्छा है, ये भी है। तो काफी इसमें लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी मतलब बेनिफिट्स होते हैं। और नॉर्मली काफी आईपीओस करंटली भी चल रही है, एसएमई के काफी आईपीओस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ग्रीन गणेश का आईपीओ आया था, वो काफी सोलर एनर्जी पे है, वो इतने अच्छे नंबर से सब्सक्राइब हुआ था, तो वो जो उसके शेयर प्राइस है वो प्रीमियम में लिस्ट हुए थे। तो जब नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाते हैं तो नॉर्मली वो अच्छे प्रीमियम में लिस्ट होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को भी काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। सो थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। मैंने आई होप कि आपको सबको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज शेयरिंग हुई है, मतलब मैं कुछ Yes, अच्छा आपको नॉलेज दे पाई। और ये सब मेरे कांटेक्ट डिटेल्स है, अगर आप मुझे लिंक्डइन में जुड़ना चाहते हो तो ये निर्मला सोनी आपका ये वेबसाइट है मेरी, और एक व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, तो आप वहाँ उसमें भी लिंक, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं तो कभी भी मेरा कुछ रिसेंटली अगर कोई वीडियोस है तो आपको मिल सकता है, आपको नॉलेज उस के बारे में, जैसे अगर स्टार्टअप्स के बारे में मैं बोल रही हूँ तो स्टार्टअप्स की आपकी जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे आपके नॉलेज अपडेशन के लिए ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन ऑल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
for their time. Thank you, ma'am, for your presentation and explaining topic in simplifying way. Now I request all the participants and delegates, if you have any question, you can unmute yourself and ask directly to the ma'am, or you can put your questions in the chat box also. I think I have received two good informative presentation. Thank Yeah, you, yeah, ma'am. Harish ji. Thank you, Supriya ma'am. I try to cover everything so that a detailed presentation can be made. Anyone has any questions, sir? So they can unmute themselves and ask. I think, ma'am, there is no more questions, so can we move ahead, ma'am? Yeah, sure. Okay, ma'am, requesting you to please stop sharing from your side. Yeah. So ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, ISO Met easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above book, please contact Ms. Shishma Kindalkar on the given contact details. Feedback form, please register on www.sadgunsung.org and go in your login and give your valued feedback to us. So thank you, Nirmala ma'am. Thank you all the participants and delegates for being part of today's Sadgun Sun. Have a Thank nice you, day. Ganesh ji. Yes, ma'am. Thank you, Ganesh ji. You have written, the session was very informative. Thank you for that. Thank you, all the participants. Thank you, ICS, for this platform. Thank you, Weber. Welcome, ma'am. So now it's time to officially close the session. Thank you, everyone.